How are you all doing? Hope you're all safe and fine. This is Dr. Toshi Sharma and I welcome you to Unnati Classes. This is going to be a very important video for you all. So watch it till the end. चाहे आप क्लास 11th में आए हो यानी कि आप नीट 2022 देने वाले हो, चाहे आप क्लास 12th में आए हो यानी कि आप नीट 2021 देने वाले हो, और चाहे आप इसी ईयर में एग्जाम देने वाले हो नीट का, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि इस वीडियो में आप ये जानने वाले हो कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. राइट. एंड इस वीडियो में ना केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, बल्कि वो टॉपर्स आपसे खुद बात करेंगे जिन्होंने 2019 में यानी कि लास्ट ईयर नीट क्लियर किया था विद अ फैंटास्टिक स्कोर एंड अ ग्रेट रैंक, एंड लकीली दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट? NCERT. Yes. This is the most important thing that should be on your priority list while you're preparing for NEET. चाहे आप कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स ट्राई कर लें, हाउ मच एवर रिफ्रेशर्स दैट यू कंसिडर, कुछ भी ट्राई कर लो, लेकिन जब तक आप ये ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक भी प्रिपरेशन में एक एक शॉर्ट गारंटी सक्सेस वाली चीज नहीं आ पाएगी. सो NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Some people find it boring. Some people find it a very difficult book in terms of the language that it has. So whatever it is very important. And if you don't believe me, have it from the horse's mouth. Hello everyone, I am Aryan Bansal. I am currently pursuing MBBS from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. I gave my medical entrance exam last year and I was able to secure All India rank 34 in AIIMS, 3rd in JIPMA and 89 in NEET. So today I am going to talk about how to prepare chemistry if you want to successfully clear the NEET. Most of the students make a mistake that they tend to ignore the NCERT and they just venture into other books. But we should realize that NCERT is the Bible of chemistry. I mean, just look at the tables in some of the chapters like gas analysis, thermodynamics and equilibrium. There are some particular trends in chemistry whose nature you can't predict. But in case you have learned the values, that will successfully help you to solve the questions. I'm not telling you to memorize the values, but just go through them so that you can have an idea. I was particularly thankful to my chemistry teacher, Dr. Toshi Sharma ma'am, who is the current owner of Unnati Classes, who made me realize every now and then the importance of NCERT. I also used to make many mistakes and ignore NCERT and venture into other things, but she was the person who made me stick to the NCERT, and I'm extremely thankful to her. People are also afraid of inorganic and particularly organic chemistry. They tend to solve those high voltage questions, but they don't realize the importance of such petty things like temperature change, color changes and pressure conditions at which a reaction occurs. So these things are just beautifully given in the NCERT. So if you want to successfully clear the examination, I don't think you should look for anything beyond NCERT and Toshi ma'am. All the best. Hello everybody. This is Arnab Upadhyay, AR 108 in NEET, 139 in AIIMS, and I scored 175 marks in chemistry in NEET 2019. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT की इम्पोर्टेंस फॉर नीट एंट्रेंस. एक फैक्ट, NCERT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एक चीज़ जो हर टॉपर की सक्सेस स्ट्रैटेजी के अंदर कॉमन लिंक है, वो है NCERT इनसाइड आउट सबने मेमोराइज कर रखी है. ऐसा क्यों? क्योंकि नीट का जो पेपर है वो एग्जामिनर NCERT सामने खोल के बनाता है. ऐसा ही लगता है 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं 180 में से. NCERT बेस्ड मतलब NCERT का कॉन्सेप्ट, उसे थोड़ा अप्लाई करा, इंटरप्रेट करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इस 80% में भी 60% क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन देखा टिक. पॉरीफेरा हैज क्वानोसाइट्स, अगर NCERT में लिखा है तो क्वेश्चन होगा पॉरीफेरा एस ए क्वानोसाइट्स बी नेमेटोसाइट्स. इस तरह के इजी क्वेश्चन होते हैं तो स्पाइनल लेवल पे आंसर किए जाने चाहिए. कोई भी एम्बिग्विटी होती है कभी किसी पेपर में कि रेफरेंस बुक कहती है आंसर ए है, NCERT कहती है आंसर बी है, आंसर हमेशा बी होगा. तो इसलिए NCERT के हर डेटा को, हर फिगर को, हर डायग्राम को, हर डायग्राम की हर लेबलिंग को अच्छे से इंटरप्रेट करो, याद करो. फोटो मेमोरी बननी चाहिए उसकी, कि जब कोई क्वेश्चन देखो तो याद आ जाए कि ये डायग्राम के अंदर इस जगह पे लिखा था, इससे रिलेटेड टेक्स्ट ये था, इसके ऊपर इसकी बात की गई थी, इसके नीचे इसकी बात की गई. ऐसा करने के लिए डबल डिजिट में रीड करना पड़ेगा.
पहली 4-5 बार में तो स्किप हो जाती है चीजें। डबल डिजिट में रीड करो, क्योंकि अगर आपकी नीट प्रिपरेशन एक पिरामिड है तो उसका बेस होगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बेस जो है वो कांस्टेंट हर किसी के लिए एनसीईआरटी ही है। इनवेरिएबली सबको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ती है अपना बेस बनाने के लिए। फिर आप क्वेश्चंस करो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो बेस पे बिल्ड अपॉन करने के लिए, लेकिन जो बेस है ये सॉलिड होगा तभी आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होगी, तभी आपका पिरामिड सीधा खड़ा रहेगा। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बायो के एनसीईआरटी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उतना ही पढ़ना है जितना बायो के लिए पढ़ते हो, अगर उतना नहीं तो एटलीस्ट 80% जितना बायो पे ध्यान दिया उतना फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे भी ध्यान देना ही है। इनऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल, पूरा पिरामिड जो है कोई बेस नहीं है उसमें, पूरा पिरामिड इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी ही है, मतलब कोई लेवल ही नहीं है। बेस कभी इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी से बाहर सवाल ही नहीं आया, ना कभी आएगा। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपने इनऑर्गेनिक अच्छे से कर ली, लेकिन एनसीईआरटी करने का मतलब है उसकी हर टेबल, हर वैल्यू, हर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक के अंदर वैसे तो मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, लेकिन तब भी एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनकी यूजेस, कुछ कंपाउंड्स की और कुछ रिएक्शन की स्पेसिफिक्स जो होते हैं वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि मुझे क्या पता ही होना चाहिए। फिजिकल के अंदर भी वैसे न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के उस न्यूमेरिकल की इंसाइट मिलती है आपको कि एक्चुअल में सोल्यूशन में क्या हो रहा था, और उस सोल्यूशन के अंदर जो हो रहा था उसकी मैथमेटिकल एस्पेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे कन्वे कर पाए हम, कब फॉर्मूला लगाना है, कहां लगाना है, क्यों आंसर आएगा, कब ये लगाना है, कब वो लगाना है, एनसीईआरटी पढ़ के एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इनकी एनसीईआरटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से करने के लिए एक अच्छे टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी है, और डॉक्टर तोशी मैन प्रोवाइड्स जस्ट दैट। चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, conceptual clarity, question solving proficiency, under her guidance you can learn it all. So thank you, all the best, that's all. तो देखा आप लोगों ने कितनी इंपॉर्टेंट है ये छोटी सी बुक। यस, आपकी प्रेपरेशन सही डायरेक्शन में तभी जा रही है जब आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही है, इसकी जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बोरिंग लैंग्वेज है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, मतलब आप लेकर के शुरुआत से एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ये फील बोरिंग है, उसे बंद कर दोगे थोड़ी देर में। तो द वे इज कि आप जब भी कहीं भी पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, जब आपको कोई भी टीचर अपनी तरफ से कोई चैप्टर समझा दे, तो जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो फिर शुरू होता है आपका काम। आप उस सेम चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करो, कीपिंग अ नोटबुक अलॉन्ग साइड, और जब आप उसे रीड कर रहे होंगे तो आपको कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स लगेंगे कि यार ये इस बात को एनसीईआरटी में अच्छे से कहा गया है। आप उसे तो वहीं पे अंडरलाइन कर सकते हो, ये बेटर थिंग कि आप उसे उस नोटबुक में लिखते जाइए कि ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से कहा गया है, ये यूज कितना अच्छा है इसके अंदर। तो ये सब आपकी जब एक नोटबुक बन जाएगी तो उसमें, और अलॉन्ग विद दैट आप उसके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करोगे, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ट्राई करोगे। सो आपकी पूरा एनसीईआरटी के नोट्स की बुक बन जाएगी जो आपके पास हमेशा हैंडी रहेगी कभी भी रिवाइज करने के लिए। सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की टेबल्स, इनफैक्ट वो जो नीचे इटैलिक फॉन्ट में लिखा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टेबल्स को मैं याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर टेबल को ऑब्जर्व कीजिए कि अच्छा इसकी ये वैल्यू इसकी उस वैल्यू से ज्यादा है, ये ट्रेंड कुछ ऐसा है। जब आप डिजिट्स में ऑब्जर्व करते हो तो आपको अच्छे से याद होता है। आपको टीचर बता दे कि भाई देखो ऐसे एनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है पर यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, पर उसी को डेटा के फॉर्म में देखोगे कि यार देखो ऐसे इंक्रीज हो रही है पर यहाँ पे इसमें फ्लिप यहाँ पे थोड़ी सी कमी आ रही है। तो वो चीज जब आप देखते हो एक डेटा के थ्रू तो आपको याद करना आसान हो जाता है। तो ऑब्जर्व ऑल द टेबल्स, दैट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गिव एन एक्स्ट्रा एज टू योर प्रिपरेशन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एंड जस्ट वन मोर थिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और स्पेशली द स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर 2020 नीट, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है टू रीड एनसीईआरटी एंड जो दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज टू योर प्रिपरेशन। आप जरूर ऐसा कीजिए, पूरा थॉरोस को रीड कीजिए, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फॉर सम चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स, thermodynamics, equilibrium, some definitions are so finally given in that book. तो आप ये सब पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा give it an extra edge. Hope you be able to do that and your endeavors come true. Thank you very much. Stay blessed. Thank you.